नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज हम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जब मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात में जो कुछ हुआ वो शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो। इससे पहले ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन दो बच्चों की तरह दो राष्ट्रपतियों का आपस में मैं तू करना क्या संदेश और क्या संकेत है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि अब यूक्रेन का आगे क्या होगा, जेलेंस्की का आगे अब क्या होगा, और साथ ही में उससे भी बड़ी टेंशन यूरोप को भी है कि बिना अमेरिका हमारा क्या होगा और बिना यूरोप के अमेरिका का क्या होगा। इस मुद्दे को समझना होगा, क्योंकि जेलेंस्की ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। तो क्या अब अमेरिका का डीप स्टेट जेलेंस्की को ही सत्ता से हटाकर एक नए सिरे से बातचीत करेगा? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार बहस। व्हाइट हाउस से निकाले गए राष्ट्रपति जेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द की गई। 1 घंटे तक इंतजार, लेकिन डिनर भी नहीं। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार बहस। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार बहस। व्हाइट हाउस से निकाले गए राष्ट्रपति जेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी रद्द की गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति का माफी मांगने से इनकार। लेकिन तम चंद तस्वीरें आपको जो अमेरिका में हुआ, व्हाइट हाउस में हुआ, उसकी दिखा देते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स और उसके बाद सीधी चर्चा पे हम चलेंगे। Big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if West you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all these tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Pretty close. Pretty shut. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? President Trump. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I respectful will answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You Don't- will not have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. And I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. Yes, contract. Yes, but after that, he broke in this ceasefire. He killed our people, and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy
GD you're speaking about? What जल्दी से एक बार ग्राफिक्स और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये व्हाइट हाउस के अंदर हुआ, तस्वीरें आपने देख ली हैं। क्या अलग पड़ जाएगा यूक्रेन? बड़ा सवाल है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच नोकझोंक हुई है। मैक्रों और स्टार्मर ने भी दिखाए थे तेवर। जर्मनी भी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया क्या खुश हैं इस झड़प के बाद? ये थोड़ा सा समझना होगा। तो चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो जाने माने खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। थैंक यू। पीके सहगल सर, मैंने खास रिक्वेस्ट पे आज आपको बुलाया है क्योंकि मुझे 26 फरवरी 2022 को शायद मेरी और आपकी बातचीत हुई थी और आप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि यूक्रेन इस जंग को हारेगा नहीं और रूस इस जंग को जीतेगा नहीं। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं सर, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट हाउस में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के बीच जो ये हुआ, ये क्या था सर? क्या वाकई में दो देशों के राष्ट्रपति मिल रहे थे सर? देखो, जो व्हाइट हाउस में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इट इज कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड एंड अनबिकमिंग ऑफ द होस्ट नेशन कि इस माफी का रवैया अडॉप्ट करे। जिस माफी का एटीट्यूड था डोनाल्ड ट्रंप का और जिस माफी का एटीट्यूड था जेडी वांस का, साफ तौर पे एक किस्म से ट्रैप लगाया गया था जेलेंस्की टू फॉल थ्रू। बट जेलेंस्की ने बड़ी चतुराई से उस ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने किसी प्रकार, उन्होंने कहा आइदर यू हैव द डील और यू आर विदाउट अस। उन्होंने किसी प्रकार से डील नहीं की। अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि जेलेंस्की किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन जेलेंस्की जो है साफ तौर पे जानते हैं कि पिछले 3 साल में जो मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड अमेरिका से मिली थी वो पूरे नेटो से और यूरोपियन यूनियन से तमाम देशों से मिलाकर उससे दुगनी से भी ज्यादा था। और ये अगर उनके ऊपर से हाथ हट जाता है तो बहुत नुकसानदेही होगा यूक्रेन के लिए। लेकिन यूक्रेन के पीछे पूरे के पूरे 27 जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के और 31 नेशन जो हैं नेटो के, जिसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, वो सारे के सारे 100% बैकअप कर रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर किसी प्रकार से अमेरिकन डीप स्टेट जो है उनको हटा नहीं सकती सत्ता से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि इस समय यूक्रेन के लिए अकलमंदी होगी कि हर प्रकार से वो जेलेंस्की के पीछे खड़े हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं, वो नेशनल हीरो के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी भी हालत में यूक्रेन को हारने नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन की हार जो है या पुतिन की जीत जो है वास्तव में यूरोप की और नेटो की हार है। अगर यूक्रेन हारता है तो यकीनन जो है रशिया विल बी टेम्प्टेड टू अटैक वन ऑफ द बाल्टिक स्टेट्स। पोलैंड को भी हमला कर अटैक कर सकता है और जर्मनी को भी खतरा है। जहां तक न्यूक्लियर अम्ब्रेला का अमेरिका का था, वो यूरोप से उनको आश्वासन नहीं है, नेटो को भी अमेरिका को आश्वासन नहीं है। बहुत बड़ा दरार आ गया है बिटवीन अमेरिका एंड नेटो, बिटवीन अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। जो आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी बाल्टिक स्टेट या किसी नेटो नेशन के ऊपर हमला होता है रशिया की तरफ से जी, तो तमाम देश जो है 31 रशिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी उनको बहुत बड़ी शंका हो गई है कि वास्तव में अगर पोलैंड के ऊपर या फिनलैंड के ऊपर या नॉर्वे के ऊपर या किसी बाल्टिक नेशन के ऊपर रशिया का हमला होता है तो क्या अमेरिका युद्ध में शामिल होगा। इसी माफी की चिंता होगी है साउथ कोरिया को, जापान को, ताइवान को, और हिंदुस्तान को भी कुछ हद तक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भरोसा उठ गया है। तो वास्तव में बहुत बड़ी जो दरार है जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली एक किस्म से भूचाल की तरह है। इसका क्या असर होगा दुनिया पे ये तो आने वाले समय पता लगेगा। लेकिन जहां तक पुतिन का ताल्लुक है, इस पूरी बहस में द ओनली विक्टर इज पुतिन। और इसी को देखकर पुतिन बड़े खुश है, चाइना बड़ा खुश है, नॉर्थ कोरिया बड़ा खुश है, ईरान बड़ा खुश है, और बाकी जो देश है खास करके नेटो के देश और यूरोपियन यूनियन के देश जो है जापान, कोरिया, हिंदुस्तान वगैरह वो चिंतित है। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। फिर जो जेडी वांस थे और अमेरिका का मीडिया जो है उन्होंने साफ तौर पे बाद में जेलेंस्की को कहा कि ही शुड अपोलोजाइज टू ट्रंप। उन्होंने साफ तौर पे कहा मैं किसी प्रकार से अपोलोजाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मैंने किया है
वो अपने देश की मजबूती के लिए, अपने देश की एकता, देश की अखंडता के लिए, देश के हित में किया है। और मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मेरे को अपोलोजाइज करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने आज साफ तौर पे कहा है कि उन्हें पक्का यकीन है कि अमेरिका का सपोर्ट उनके ऊपर विड्रॉ नहीं होगा और अमेरिका हर प्रकार से हमारे पीछे खड़ा रहेगा। क्या वो खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता, वो तो आगे समय बताएगा। लेकिन जी उन्होंने साफ तौर पे इस माफी की स्टेटमेंट दी है। अगर आप देखो तो कल ही नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में यूके में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है यूरोपियन नेशंस की, जिसमें ये डिसाइड होगा कितने बड़े पैमाने पर और किस प्रकार से सपोर्ट करना है जेलेंस्की को। मैं आज भी वही ओके कहता हूँ जो मैंने 24 फरवरी 2022 में कहा था कि ये युद्ध जो है, रशिया ने, पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, वो जीत नहीं सकता, जेलेंस्की ये युद्ध हार नहीं सकते। आई स्टिल मेंटेन दैट रशिया कैनॉट। अगर आप देखो, रशिया ने कम से कम 80,000 से 1 लाख से ज्यादा ट्रुप्स उनके अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के इशारे एस्टिमेट के जी मुताबिक मर चुके हैं। वास्तव में उससे बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने क्या पाया पिछले कुछ महीनों में? कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कीमत चुकाई है। अभी भी जो 4 बिल्कुल सर प्रोविंसेस हैं जिनके ऊपर हर प्रकार से हथियाना चाहते हैं, जिनको, उनके ऊपर भी पूरी पकड़ नहीं है। वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा और रशिया की इकोनॉमी सिंक हो जाएगी, क्योंकि उनको रिक्रिएट करने के लिए और रीबिल्ड करने के लिए रशिया यूक्रेन करने नहीं देगा। वो आए दिन उसके ऊपर हमला ओके करता रहेगा। ऐसे में बड़ा लाजमी है विश्व शांति के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है कि वहां पे किसी ना किसी से युद्ध विराम किया जाए और सीज फायर किया जाए, लेकिन वो सीज फायर तभी होगा जब उन इंटरेक्शन में यूरोपियन यूनियन भी, ऑल स्टेक होल्डर्स, यूरोपियन यूनियन स्टेक होल्डर है, जेलेंस्की स्टेक होल्डर बिल्कुल है, उनको भी शामिल किया जाए। अगर कोई बातचीत होती ठीक है सर केवल रशिया और अमेरिका के बीच में, तो वास्तव में इट इज अ नो गो सिचुएशन। आपको ठीक है इन सर स्टेक चलिए होल्डर को शामिल करना पड़ेगा और कोई ऐसी डील करनी पड़ेगी विच इज अ विन विन सिचुएशन। ना तो इनके लिए लॉस ऑफ फेस होना चाहिए, ना उनके लिए। हिंदुस्तान ने साफ तौर बिल्कुल पे कहा है कि जो आर्टिकल 5 है या यूएन का चार्टर है, उसके तहत जो किसी देश की सॉवरेनिटी को वायलेट करना या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करना एक्सेप्ट नहीं करते। तो ठीक हिंदुस्तान है भी साफ तौर मैं पे आता कहता है हूं कि दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ ठीक है वॉर। मैं आता हूं सर हर क्योंकि इश्यू इसका का इम्पैक्ट हल। एशिया में क्या होने वाला है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा, यूरोप में क्या होगा, मिडिल ईस्ट में होगा, उसको लेकर भी मैं बातचीत आपके साथ, आप दोनों के साथ करूंगा। लेकिन देवनाथ सर के पास मैं चलना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। देवनाथ सर, ये जो अमेरिका में हुआ, व्हाइट हाउस के अंदर जो हुआ, 2-3 सवाल सर, क्या मीडिया के सामने ये बहुत जरूरी था क्या? और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है सर। जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों गए, हमने तब भी देखा कि मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग सा व्यवहार उनके साथ, और बीच में उनका डोनाल्ड ट्रंप को टोकना, हाथ पकड़ के रोकना, और जो मिसलीड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसको ठीक करना। स्टारमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वो मुस्कुरा के रह गए, उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने बात को पलट दिया। वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा कि क्या आप हमारे बिना ब्रिटेन रूस से लड़ सकते हो, ब्रिटेन हमारे बिना क्या लड़ सकता है? स्टारमर मुस्कुरा के रह गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्या यहां पर एक अमेरिका या कहें डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीजों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं? हुआ क्या सर ये, और क्या ये जरूरी था सर? हाँ राजेश, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, हर रोज वो दुनिया में सबको चकित कर रहे हैं। और कल तो जो हुआ उससे दुनिया भर के राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट विस्मित भी हो गए हैं। मैंने अपने जीवन काल में, या जनरल सहगल भी हैं, हम दोनों ने ही अपने जीवन में कभी भी ऐसी आश्चर्यचकित बातें दो देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में सुनी नहीं। होता यह है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, तो उसे पृष्ठभूमि में डिस्कस करते हैं, क्लोज्ड रूम में डिस्कस करते हैं। हमेशा क्या करते हैं कि दो देशों के जो टॉप लीडर्स हैं वह मिलने के पहले 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले दोनों देशों से ही उनके जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो जाते हैं और करीबन करीबन 70, 80, 90% तक एक ज्वाइंट ड्राफ्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। और उसके बाद वो अपने अपने जो लीडर्स हैं उनको ब्रीफ कर देते हैं। तो जब शीर्ष लीडर जब पहुंचते हैं, तो वो बस वो फिनिशिंग टच देते हैं 10%।
और एक ज्वाइंट जी स्टेटमेंट प्रेस के सामने प्रेस ब्रीफ इशू हो जाता है, बातचीत करते हैं। ये मैंने सैकड़ों ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होते हुए देखे हैं, सैकड़ों ऐसे प्रेस ब्रीफ देखे हैं। आमतौर पे वो जरा कॉफी पीते हैं, बिस्किट पीते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के जी आंखों में देख के मुस्कुराते हैं। और अगर कुछ डिसएग्रीमेंट है, उसको अगली मीटिंग के लिए छोड़कर अपने दिल में दबाकर वापस आ जाते हैं। हाँ, अभी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। राजेश, जैसे कि जनरल सहगल ने भी कहा, अमेरिका जो है, शायद डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे जेलेंस्की के ऊपर। दबाव उन्होंने पृष्ठभूमि में भी बनाया होगा, क्लोज रूम में भी बनाया होगा, पर्दे के पीछे भी दबाव बनाया होगा। फिर उन्होंने देखा कि जेलेंस्की काबू में नहीं आ रहे, तो बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में डील करते हैं, उनको मालूम है कि बीच बीच में पुचकारने के साथ थोड़ा जी कठिन, टेढ़ी बात, कड़वी बात भी करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैं एज ए मिलिट्री मैन सोच रहा हूं कि क्या अब अमेरिका यूक्रेन का हाथ छोड़ देगा? नहीं राजेश, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका यूक्रेन को सहायता देता रहेगा। सिर्फ ये चीज होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हर रोज अगर वो यूक्रेन को 100 बॉम्ब्स दे रहे हैं, तो उसको जी आस्ते आस्ते कम करके 90 कर दें, आस्ते आस्ते कम करके 80 कर दें। अपने आप जेलेंस्की समझ जाएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप 100 बॉम्ब हर रोज नहीं देंगे, सिर्फ 80 देंगे, और कल से 70 देंगे, तो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाओ। जी राजेश। जी ये मौका भी है यूक्रेन के लिए और पूरी दुनिया के लिए मौका है कि आप अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं सहगल सर आपके पास आऊंगा। अब क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम हैं तो आप हैं, हमारी वजह से आपका वजूद है, हमारे बिना आप कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हाल ही में जो 3 मीटिंग, अहम मीटिंग हुई, उसमें स्टारमर को हम ले लें, मैक्रों को ले लें या जेलेंस्की को ले लें, तो एक चीज तो यही एहसास कराया जा रहा है सर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं, शॉक एंड ऑ। अगर आप देखो, जब वो जॉर्डन के किंग से मिले, जब वो हेड ऑफ द स्टेट से इजिप्ट के मिले, तो उन्होंने यही कार्रवाई की। जब वो शोल्स को मिले, जो जर्मनी के पहले चांसलर थे, तो यही कार्रवाई की। जब वो मैक्रोन से मिले या स्टारमर से मिले, एग्जैक्टली वही रवैया अपनाया, वही रवैया उन्होंने अपनाया जहां तक जेलेंस्की का ताल्लुक है। साफ तौर पे वो दर्शाना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया हुआ है उन्होंने यूरोप के ऊपर 80 साल से, उसके ऊपर यूरोप भरोसा ना करे। तो साफ तौर पे कह रहे हैं यूरोप अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करे, और इतनी इंक्रीज करे कि आप यूरोप खुद अपनी सुरक्षा कर सके। इसी माफी को जापान को और साउथ कोरिया को भी कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू पे फॉर, हमने वहां पे 35,000 फोर्सेस रखी हुई है साउथ कोरिया में, जापान में भी यू हैव टू पे फॉर देम। अभी वो ग्रेटेस्ट है वहां पर, आपको उनके लिए इसी माफी फिलीपींस वगैरह में सारी जगह, हर जगह कहते हैं कि आपको हमको पैसा देना पड़ेगा फॉर द सिक्योरिटी दैट वी प्रोवाइडिंग। तो यूरोप के कोई ऑप्शन नहीं फॉर द टाइम बिंग, नेटो को कोई ऑप्शन नहीं। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि 80 साल से जो उनको अमेरिका का अम्ब्रेला था वो शायद नहीं होगा। साथ ही साथ उनको बहुत शक हो गया कि कल क्या किसी देश के अंदर, नेटो देश के अंदर रशिया का हमला हो जाता है तो क्या अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लगता। जब एक पत्रकार ने उनसे यह भी पूछा कि कल चाइना अगर इन्वेड करता है ताइवान को, तो आपका क्या रवैया होगा, तो उधर भी उन्होंने कहा कि आई विल बी न्यूट्रल। और साथ पे उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल, तो उन्होंने कहा बड़ा लाजमी है कि बाइडेन से पहले जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी थी, उस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को चाइना को पता नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे। लेकिन वास्तव में बड़े पैमाने पर उनका अटेंशन, उनका फोकस, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडो पैसिफिक है। वो साफ तौर पे जानते हैं कि इस इलाके में 6 न्यूक्लियर पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है और इंडिया है। अगर कल वहां कुछ युद्ध होता है या कोई झड़प होती है चाइना के साथ अमेरिका की, तो 3 का तो जबरदस्त गठबंधन है, रशिया का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का। पाकिस्तान का क्या रवैया होगा कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान किसी भी हालत में मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे में उनकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि रशिया को चीन से भी नफे करें, और इसी को निगाह में रखते हुए वो अपने रशिया के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करना चाहते हैं, हर प्रकार की सैंक्शन उनके ऊपर हटाना चाहते हैं, और रशिया को भी
सबसे बड़ा जो खतरा है वास्तव में वो चाइना से है। रशिया की ओके। पॉपुलेशन 140 मिलियन है, चाइना की पॉपुलेशन 1400 मिलियन है। बड़े पैमाने पर 25 से 30% साइबेरिया का एरिया के ऊपर इनक्रोचमेंट हो चुकी है। जी पिंग ने साफ तौर पे कह दिया कि 2049 तक जो ओनली वार्म वाटर पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, वो ओके। कुछ साल पहले चाइना का हिस्सा होता था, उसको हम लेके रहेंगे। तो ओके। चाइना, रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मजबूरन, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन और नेटो की सैंक्शन की वजह से, यूरोप की सैंक्शन की वजह से मजबूरन चाइना के गोद में चला गया। लेकिन चाइना भी अभी चिंतित है। शुरू में तो ठीक है बड़ा सर, खुश ठीक हुआ, है। लेकिन अगर देखो जब रियाद में मीटिंग हुई तो चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। जब इस्तांबुल में जी। मीटिंग हुई दोनों एम्बेसीज को दोबारा सही तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए, तो जीपेंग ने इमीडिएट स्टेटमेंट इशू की कि हम हर प्रकार से रशिया के पीछे खड़े हैं, कोई कोई कंडीशन नहीं है। उनको साफ ठीक तौर है। पर चिंता नजर आ रही है कि रशिया उनसे अलग हो सकता है। इसी माफिक डोनाल्ड ट्रंप ने 397 बिलियन डॉलर जो दिए हैं पाकिस्तान को भी, वो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी चाइना चाइना की गोद से अलग किया जाए, टू द एक्सटेंट दैट इज ठीक। पॉसिबल। होगा या नहीं होगा ओके। वो तो समय बताएगा, लेकिन वो उनकी उसके कोशिश लिए जरूर है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, नॉर्थ लेकिन मुझे एक नॉर्थ छोटे से कोरिया ब्रेक को के लिए चाइना जाना, को माफी चाहूंगा सर। ठीक है सर। सहगल सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए निकल रहा हूं, छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देवनाथ सर मैं आपके पास भी लौटूंगा। क्या वाकई में ताइवान, फिलीपींस, जापान और साउथ कोरिया को अब जागने का वक्त आ चुका है? क्योंकि ये वो देश हैं जो पिछले 5-6 दशक से लगातार अमेरिका के ऊपर भरोसा बनाए हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या उनकी भी रातों की नींद उड़ा दी है? इसका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक बार बड़ी खबर दिखा दीजिए। ट्रंप से पंगा लेकर क्या फंस गए जेलेंस्की? बड़ा सवाल। यूक्रेन में जा सकती है जेलेंस्की की सत्ता। अमेरिका का डीप स्टेट अब लेगा एक्शन। जेलेंस्की के कारण नजदीक आए पुतिन और ट्रंप, यह भी बड़ा सवाल है। ट्रंप से पंगा लेकर क्या फंस गए हैं जेलेंस्की? यूक्रेन में जा सकती है जेलेंस्की की सत्ता। अमेरिका का डीप स्टेट अब लेगा एक्शन। जेलेंस्की के कारण क्या नजदीक आए पुतिन और ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। यूक्रेन का आगे क्या होगा? जेलेंस्की को हटा सकता है अमेरिका, इस बात के कयास बहुत तेज हैं। यूक्रेन की पूरी तरह से मदद पर रोक भी लग सकती है, और बिना अमेरिका की मदद के जेलेंस्की कैसे लड़ेंगे जंग? नेटो अमेरिका के बीच अब टेंशन देखने को मिली है, और क्या नेटो से भी अमेरिका बाहर हो सकता है क्या? इसका भी जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। नेटो से अलग हो सकते हैं ट्रंप। यूक्रेन को मिलेगा क्या नया राष्ट्रपति, और उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो ये बातचीत है उसको आगे बढ़ाएंगे। पुतिन, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया काफी खुश, क्योंकि जो वो चाहते थे कि नेटो के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो, पुतिन ने वो कर दिखाया। नेटो में दरार डालने में कामयाब रहे पुतिन, और जबरदस्त दरार डाली है। अब हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगा। नेटो को लेकर मैं थोड़ा ठहर के समझता हूं सर, पहले मुझे लगता है कि एशिया को लेकर जो है मैं आपके साथ बातचीत करूं। क्या वाकई में जो कुछ हुआ व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में, उसके बाद ताइवान, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया अपने बारे में सोच रहे होंगे सर गंभीरता से कि आने वाले वक्त में ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि भाई चीन के साथ, चीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मुझे वो चाहिए, और मैं इनके साथ दोस्ती कर रहा हूं, और अब आप अपना अपना देख लो। और ये सवाल उस वक्त जरूरी है सर, क्योंकि जो इस वक्त एलन मस्क हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के खास हैं, कहा जाता है कि उनका दिल तो बीजिंग में है, क्योंकि उनका बिजनेस वहीं से चल रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे सर। जाहिर बात है कि जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, ताइवान थोड़ा तो चिंतित होंगे। लेकिन राजेश, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे पत्ते, ताइवान वाले पत्ते अभी तक खोले नहीं हैं। उनका पूरा जो ध्यान है फिलहाल, उन्होंने जितनी स्टेटमेंट दिए हैं जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, वो सब या तो हमास इजराइल की तरफ केंद्रित थे, या रूस और यूक्रेन की तरफ केंद्रित थे।
उन्होंने अपने दिली बातें उन्होंने या जेडी या जैसे जी एलन मस्क ने अभी तक चीन के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ देखिए, दो कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी। यूक्रेन में क्या हुआ, पहले रूस ने अटैक किया और उसके जी बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता देनी शुरू की, या जैसे भविष्य में शायद थोड़ा कम कर देंगे। तो अगर हम ताइवान की बात करें तो पहली चीज तो चिंता की तब होगी अगर चीन ताइवान पर हमला करता है। तो ताइवान अपनी तरफ से फिलहाल यही कोशिश कर रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना पैदा हो, कोई छोटे मोटे जो जी गिले शिकवे होते हैं वो पैदा ना हो चीन के साथ, ताकि चीन को ताइवान को हमला करने का बहाना ना मिले। पहली चीज तो ये। तो अभी हम होराइजन पर कोई भी ऐसा सिचुएशन देख नहीं रहे कि इस साल अगले साल चीन ताइवान पर हमला करने वाला है। एक और चीज है, ताइवान को बचाने के लिए क्या अमेरिका सामने आएगा? जाहिर बात है अमेरिका सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ताइवान में, डायरेक्ट जी इंटरेस्ट है ताइवान में। ताइवान जो है अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है उसका करीबन 40% सप्लाई करता है। फिर ओके क्यों अमेरिका सपोर्ट में आएगा ताइवान की? दूसरी बात यह है कि जापान में ओकिनावा में अमेरिकन फ्लीट बैठी हुई है। दक्षिण कोरिया बैटरी के तो पोलैंड बुसान में में भी है अमेरिकन सर। फ्लीट और अमेरिकन सर एयरफोर्स सर के सर सर स्ट्रेटेजिक सर बॉम्बर बैटरी तो तैयार हैं। पोलैंड में भी है। सर जो मेरी जानकारी है बैटरी तो पोलैंड में भी है सर। पोलैंड में भी अमेरिका के सैनिक है, लेकिन क्या किया उन्होंने? और दूसरा, अगर शी जिनपिंग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें ताइवान लेने दो, लेकिन जो वहां पर चिप्स हैं वो आप ही बनाना, मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे सर। हाँ राजेश, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, कुछ भी कर सकते हैं। जनरल सहगल भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए थोड़ा फर्क है। नेटो में जो एयर बेसेस बनाए हुए हैं जहां अमेरिकन की एयरफोर्स और अमेरिका की मिलिट्री तैयार है, जी वो इसलिए तैयार है एज पर नेटो चार्टर कि रूस पहले नेटो देश पर हमला करे। ये समझना पड़ेगा। यूक्रेन अभी तक नेटो देशों का मेंबर नहीं है, नहीं था, नहीं है, आने वाले कुछ समय तक नहीं होगा। तो अमेरिका के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर सब नेटो में तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रूस पे बॉम्बिंग करने के लिए तैयार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट है पहले रूस को एक नेटो देश पर हमला करना है। तो पुतिन चालाक है, उनको मालूम है कि यार यूक्रेन को ऐसे ही गपचियाने की कोशिश करो बिना किसी नेटो देश पर हमला किए हुए। तो मामला थोड़ा ताइवान से अलग है। ताइवान में क्या ओके है कि जैसे फिलीपींस में अमेरिका ने 4 बेस खोल दिए, 2 नेवी के, एक एयरफोर्स के और एक जी आर्मी का बेस खोल दिया है। बुसान में आप देखिए तो अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट का एक जो स्क्वाड्रन है वो हमेशा रहता है। गुआम में अगर आप देखें प्रशांत महासागर में यूएस एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हमेशा तैयार रहते हैं। तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि नेटो देश पर हमला होने पर ही हमला करेंगे। वहां पे एक ही सिंपल सी इक्वेशन है, चीन ने ताइवान पर हमला किया, अमेरिका शुड डू ए हस्तक्षेप। तो नेटो चार्टर जैसा कोई ताइवान चार्टर नहीं है। जी एक और चीज है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका इस सिचुएशन में है कि वो ताइवान को ना बचाए, चुपचाप तटस्थ बैठा रहे? नहीं, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ही करेगा तो ना सिर्फ दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस डर जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश जो कि जिनकी की सीमा है चीन के साथ वो भी थोड़ा खलबली में आ जाएंगे, और जो देश हैं क्वाड के वो भी हिल जाएंगे। तो अगर चीन ताइवान को गपचियाने की कोशिश करता है फौजी तरीके चलिए, से, ये तो देखना होगा अमेरिका क्योंकि को उसमें आना ही कुछ पड़ेगा। सर कुछ जी ऐसा ही भरोसा कुछ ऐसा ही भरोसा अमेरिका ने जेलेंस्की को भी दिया था। और आज हम क्या जेलेंस्की के साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है सर। जेलेंस्की किसके सारे लड़ रहे थे? नेटो और अमेरिका के सारे लड़ रहे थे। अगर ये लोग साथ नहीं देते जेलेंस्की तो 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर देते, लेकिन इन्होंने उकसाया, उन्होंने लड़ाई मोड़ दी और आज हालत हम देख रहे हैं। वक्त थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा। लेकिन पी के सहगल सर,
क्या वाकई में एक जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बड़े फैसले ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि I-5 से उसको निकाल दूंगा, कभी मैं यूएन से अलग हो जाऊंगा, WHO से अलग हो जाऊंगा, क्या नेटो से भी अलग हुआ जा सकता है सर? देखो, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। वो वास्तव में नेटो से अलग होते हैं या नहीं होते, या यूरोपियन यूनियन को झटका देते हैं, बैकस्टैप करते हैं, ये तो समय बताएगा। वी कैन ओनली स्पेक्युलेट, क्योंकि मैवरिक है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी फैसला लेते हैं। अभी जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, पहले 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान की तरफ भी हनीमून पीरियड है। वहाँ का मीडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अमेरिकन खुद चिंतित है उनकी पॉलिसीज को निगाह में रखते हुए। वहाँ के काफी जजेस जो है उनकी कई कई डिसीजन को चुनौती दे रहे हैं। जो उन्होंने कहा नेचुरलाइज सिटीजन को वापस भेजेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट को कट डाउन करेंगे, और कई फैसले हैं। साथ में वहाँ हर 2 साल में इलेक्शन होती हैं। रिपब्लिकन साफ तौर पे उनको लग रहा है कि जब 2 साल का इलेक्शन होगी, वो सेनेट में और रिपब्लिक और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में मेजोरिटी खो बैठी है, और ट्रंप की सरकार जो है 2 साल के अंदर एक लेम डक सरकार हो जाएगी। इससे भी वो चिंतित है। और साफ तौर पे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी जब वो 4 मार्च के बाद में टैरिफ लगाएंगे कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर। वहाँ इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी तब्दीली आ जाएगी। तो तब ट्रंप के खिलाफ काफी ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जहां तक अमेरिका डीप स्टेट है, उन्होंने काश पटेल को बनाया है, वो डीप स्टेट को ट्रस्ट नहीं करते। डीप स्टेट को खत्म करने के लिए काश पटेल को रखा गया। तो ऐसे में डीप स्टेट जो है वहां सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती, जिसकी आपको संभावना है। जैसे उसने 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन वहां के ऑपोजिशन लीडर्स की अगर आप बातचीत सुने, आज उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं ज़ेलेंस्की वहां के नेशनल हीरो बन गए, एंड ऑपोजिशन पार्टीज आर टोटली बैकिंग अप इन टोटलिटी। ओके, सारे के सारे यूरोपियन नेशन जो है के पीछे लगे, वो ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हैं सर। ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि बहुत कुछ अभी होना है। यूरोप में बहुत कुछ होना है, समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल पीके सहगल सर शुक्रिया आपका भी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।